some kind of scenarios. So today we are going to discuss about the classes, the blueprints, that how we can use the or that specified classes so that we can build uh, our own widgets and will call into the project. So exactly what I'm trying to saying is that's uh, is it visible to everyone? Okay. So let's suppose that we have several components here. Let's suppose into these components, let's suppose we have several parts. Flutter application one like this. So into this part, if you look on the system, you will see that we have several componential parts. Like if we going to build another project, let's suppose going with another project into this into the same thing. That's an application we are providing the Flutter. So please try to get some idea into the same thing. But what I'm exactly telling you, that when we onto our code, we got something like my app and so on. If we go this with this lib section and main.dart, you will see that we have several componential systems. We have several componential part. Let's suppose by this my app. Is it visible? This my app part. Sahiti, is it visible? Hariom, Suryansh. Okay. So what exactly happening here? If we look into our previous codes, if you are go back into our previous codes, we'll see that we directly pass material.dart, or we directly pass material app, then we directly pass scaffold and so on. Okay. But let's suppose if we need to create our own widgets, if we need to create a widget with my own name, let's suppose with the name of Maya, then how we can create that specified widgets? We have to learn these parts. Okay. So we have 2 to 3 componential systems what we have to learn today. That one is that we can develop our own widgets with the help of these classes like this. Okay, if you will see that we have this my app class, and below this, what exactly this my app will do? This my app is a particular class which we are creating just below by this void main app like this. Okay, and into this my app class we are defining all the systems that what we exactly need to build. Okay, so let's suppose if we look on these classes, first of all we have to get an idea at what exactly we are including into these classes, and after this only we have to mention, or we have to understand that how exactly these things will work, or what exactly these things will work. So please note this thing, that if we go with this part here, from here we will try to get the widgets into our system. Now into this, if you will see that we are having material app here. Okay, and as you know, as we previously mentioned, that how we can start the system into this run app part. So first of all, we just put some kind of material app, then we will put some kind of text and some all. So just like that part, we will into this material app, we will providing this title and this theme. Okay, is it clear? Like what exactly we are going to do, and what exactly we are doing here into this system, into this section. So into this section, actually what exactly happening here, that instead of giving uh, instead of giving the names, instead of calling the widgets separately into this run app,
we will just create a particular package, or we just create a specified thing so that we can directly pass it into the system. So what exactly we are going to discuss is what exactly we are going to be a part of this. So is it visible to you? Is it visible to all of you that these lines? So now let's suppose that we have some scenarios. Let's suppose this is my mobile screen, or this is my stack screen. Okay, and into this screen, what I am doing, I just put the run app, and into this run app we just going with material app. We will go with this material app, and into this we will go with that scaffold. As as we learn uh, as we learn that scaffold, and similar to it, let's suppose we go with that center part and so on. So into the whole scenario, what exactly we done, we learned that. Mhm, mhm. जस्ट अ मिनट, इसको पहले हम कंप्लीट कर लें, इंग्लिश में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैं इसे हिंदी में बताता हूँ, ठीक है? ओके, so first of all, what exactly is going here, what exactly is just mentioning here, into this whole scenario, into this mobile screen scenario, when we going with this run app part, when we go in this with this run app part, we will notice that some kind of material app and some kind of scaffold app and some kind of center widgets are just mentioning into this part. But instead of mentioning the whole systems into this run app part, what exactly we will try to do? We will just mention. We will not mention these things, these material app or these scaffold systems into this run app. Instead of it, we will create a particular package, or we will create a specified, you can say a specified a packet of different scenarios, which will contains all the information as into a single document. So देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास जो रन ऐप है, ठीक है ना, इस रन ऐप के अंदर, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हम लोग यहाँ पे मटेरियल ऐप को मेंशन कर रहे थे, फिर मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड डाल रहे थे, मतलब मल्टीपल विजेट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे थे, याद है? मैंने यहाँ पे एक जो क्लास ली थी उसके अंदर मैंने टेक्स्ट के अंदर बताया था कि टेक्स्ट की हम स्टाइलिंग कैसे करते हैं रन ऐप के अंदर या इन सब चीज़ों के अंदर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस चीज़ के बारे में कि कैसे ये सारे काम होते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग रन ऐप के अंदर डायरेक्टली अगर वैल्यूज़ को पास ना करें, और हम अगर ये चाहते हैं कि भाई मुझे रन ऐप के अंदर ना मिला के, या फिर मुझे एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन ना करते हुए हम लोग इसके अंदर सिंगल सिंगल, या आप बोल सकते हो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर देंगे, जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग रन ऐप पे पास कराएंगे। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? Saiti, is it clear what I explained to you? So into this, how we can do this part, we have to do this into two different scenarios. हम लोग ये काम कैसे करेंगे, दो अलग अलग स्टैक्स हमें बनाने होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल समझना। देखो एक्चुअली क्या है, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, what we study earlier, it's just about programming, but now we will study about the architecture. Okay, we will study about the architecture that is completely different from the whole scenarios. Architecture is so important to this part. देखो आर्किटेक्चर में क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली अवेलेबल इन दिस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हम ये बताते हैं कि हमारी ऐप डिज़ाइन कैसे होगी, या हमारी ऐप के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है? सो
architecture is actually important because it describes the whole scenarios that how we can develop the specified application into the current scenario. Okay, ये बात मान के चलना कि अगर आपको आर्किटेक्चर ढंग से आता है तो आप एक अच्छे से ऐप को डेवलप कर सकते हैं आसानी से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आर्किटेक्चर, व्हाट एग्जैक्टली आर्किटेक्चर मीन्स और इसमें आर्किटेक्चर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे थोड़ा समझना इस चीज़ को। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक घर डेवलप कर रहा हूँ। ओके, आई एम बिल्डिंग एन हाउस लाइक दिस। ओके, इनटू दिस पार्ट। अब इस पार्ट के अंदर मुझे कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, ठीक है, वेयर आई हैव टू प्लेस द स्पेसिफाइड थिंग्स दैट कंप्लीटली कम्स इनटू द आर्किटेक्चर। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे एक खिड़की देनी है, ठीक है, एंड मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज एक दरवाज़ा प्रॉपरली लगाना है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली आर्किटेक्चर के अंदर आएंगी। ओके, सिमिलरली if I go with that application, if I need to specify the application, we must have to know about this thing, that what kind of element we are going to place into a particular scenario, or what kind of elements we are placing at front and what kind of elements we are placing at the back. So आर्किटेक्चर में क्या होगा, एप्लीकेशन की आर्किटेक्चर में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास में क्या क्या चीज़ें फ्रंट आउट में आएंगे और क्या क्या चीज़ें बैक्स में आएंगी। ठीक है, is it clear? Is this part is clear? As we will discuss it in detail into a later part, but we have to initiate it, like how we can go with that architecture. Clear है ये आर्किटेक्चर कैसा, आर्किटेक्चर एग्जैक्टली मतलब क्या आर्किटेक्चर का यहाँ पे? सही इज इट क्लियर? हरिओम। नाउ क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो, जस्ट अ मोमेंट। So please go with this part. We have three different components into our study. The first component is import, as we discussed it, like what exactly import will do with us. Okay. The second thing what we discussed will be was run app, like how this run app will work. Okay. Now at this time we have to go with some kind of classes here. Classes. Okay. So what exactly it means? Let's suppose into that scenarios. When we have a specified structure, हमारी जो पूरी क्लास या हमारा जो पूरा ऐप है, उस ऐप के अंदर एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर फॉलो होगा यहाँ पे। वो स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक मटेरियल ऐप को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मटेरियल ऐप को कॉल किया लाइक दिस। Initially I just go with that material app, and into this material app I use this scaffold. I go with this scaffold. Okay, and into this scaffold I mention the components like text or you can say the alignment and so on. हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक मटेरियल ऐप चालू करा। मटेरियल ऐप के अंदर हमने स्कैफोल्ड दिया और स्कैफोल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट या सेंटर विजेट्स या अलाइनमेंट्स वगैरह हमने कुछ दिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, दे ऑल दी थिंग्स आर बीइंग पास्ड इनटू दिस रन ऐप, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग दैट थिंग्स इनटू दैट रन ऐप सिस्टम, वी विल डिक्लेयर देम इनटू सेपरेट क्लासेस। ओके, हम लोग इसको अलग अलग डिक्लेरेशन ना देते हुए अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अब रन ऐप में कॉल करने के बजाय एक अलग से क्लास बनाएंगे। ठीक है, और इस क्लास में प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि हमें इसके अंदर क्या वैल्यू मेंशन करवानी है, क्या इसमें वैल्यू देनी है और क्या नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? सही, इज इट क्लियर?
Yeah. We are just declaring the classes now. We are using classes instead of going with this run app. Okay, and what we will do, we will pass the name. Let's suppose my class name is app. Okay, so instead of using this ma or material app or scaffold, we will pass app into this run app like this. Okay, so this run app will reference this classes and will run whatever we will written into this classes. Okay, so देखिए इसमें क्या होगा exactly, हम क्या करेंगे इसमें, मैं यहाँ पे क्लासेस बनाऊंगा, ठीक है, और इस क्लासेस के अंदर मैं अपने पास मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे रन ऐप में दे रहा था वो स्ट्रक्चर मैं अब क्लासेस में मेंशन करवाऊंगा, ठीक है। और जब हम लोग इसको क्लासेस में मेंशन करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा या उससे होगा क्या कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों को हर बार हर एक चीज़ रन ऐप में नहीं डालनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर हमें क्लासेस में कैलकुलेट करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा और इसका जो रेफरेंस है वो हम लोग रन ऐप में दे देंगे। ये बात क्लियर हो रही है सूर्यांश? हरिओम। ओके, सो नाउ let's go with this part, like how we can develop the classes and how we can go with that specified things. So this is my application, and into this application, let's suppose if you will see this part. So what exactly happening here, instead of calling all these things, I just created a particular class with the name of myapp, and I will pass the name of this myapp into this run app. So हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे अलग से कुछ भी मेंशन ना करते हुए सारी चीजें क्लास में डाली हैं जिसका नाम हमने रखा है क्या, माया। ये बात समझ में आ रही है? और इसके अंदर हमने क्या किया, इस माया का रेफरेंस हमने रन ऐप में दे दिया, ठीक है। अच्छा, अगर इसका नाम हम माया ना रखना चाहें, कुछ और रखना चाहें तो हम वो भी रख सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नाम रख दिया फ्लटर क्लास, लेट सपोज मैंने यहाँ पे नाम बोल दिया फ्लटर। पर अगर आप देखोगे ना यहाँ पे तो ये मुझे एरर दे रहा है। इफ यू विल सी, if I pass the name instead of my app, I use flutter here, then you will see that I got some kind of error into this part. So what exactly error we are getting, because we are not creating any kind of class with the name of this flutter, that's why we are getting this error। क्योंकि हमने देखो किसी भी तरह की यहाँ पे कोई कोई क्लास फ्लटर नाम से नहीं बना रखी है, इस वजह से एरर दे रहा है। और फ्लटर क्या, मैं अगर इसे फ्लटर ओ बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्लटर ओ नाम से कोई भी मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है, तो फ्लटर ओ नाम से हमें क्लास बनानी है। So what we will do, we will just pass the name this flutter o like this into this, and you will see when I pass the whole things, the error will go. Okay, यहाँ पे आप देखो जो भी मैंने यहाँ पे नाम दिया था वो नाम जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लासेस में पास किया ऑटोमेटिकली पूरी एरर चली गई। यानी कि जो भी यहाँ पे हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे ये क्लास मेंशन कर रही है। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा था, स्टिल हमने क्या क्या मेंशन किया था कि अगर हमें कुछ भी रन कराना है तो हमें रन ऐप के अंदर उसे पास करना पड़ेगा। अगर हमें कोई विजिट बनाना है तो रन ऐप के अंदर पास करना पड़ेगा, ठीक है। बट नाउ हमने क्या देखा कि रन ऐप की जगह पे, रन ऐप तो चलो जो आप बनाओगे सो बनाओगे, आप रन ऐप के अंदर पास करने की जगह एक पूरा का पूरा रैपर बनाओ। ओके, रैपर डेट मीन्स कि एक पूरा विजिट आप क्रिएट करोगे इनटू अ पर्टिकुलर सिनेरियो, और इस पूरे विजिट में आप इस पूरे विजिट को आप पास कर दोगे किसके अंदर, रन ऐप के अंदर। और ये विजिट बनेगा कैसे, ये विजिट बनेगा एक क्लास की मदद से, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या समझना है और हमें क्या सीखना है अब कि हम लोगों को एक क्लासेस कैसे डेवलप करनी है। सो into the whole scenario, these classes are act like wrappers। Okay, into these wrappers we just creating these wrappers with the help of these classes, and we will pass this into this run app by this run app system। So into this run app, what exactly will happen, the whole scenario, the whole system will convert it into a wrapping class, or you can say a particular widget which will be call the name of as flutter 0 like this। Okay, so let's start with this part। So what we will do, we are just creating a particular file here with the name of let's suppose new flutter dot dart with the name of this, and here what we are creating,
यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, we are just calling that import file like this, and into import what we have to do, Saiti, into this import what will be the address we have to put into this, into between these single quotes? Is it only material.dart or we have to use something else? सूर्यांश, इसमें ऑर्डर क्या आएगा? फ्लटर डॉट मटेरियल पे तो एरर दे रहा है मुझे. या वी हैव टू यूज पैकेज. तो ये बात ध्यान रखना, इट इज मैंडेटरी दैट वी हैव टू पुट पैकेज. व्हाई वी हैव टू पुट पैकेज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट व्हाई वी आर गो विद दिस दैट स्पेसिफिक पैकेज. जब भी हम लोग इंपोर्ट पे जाते हैं, whenever we will go with this import thing, so what exactly happening here, let's suppose I have particular objects, like suppose I have particular objects like this. I have a specified object like this. Each one has a file, let's suppose v1, that is v2, that is v3, that is v4, and that is v5. That's how we have files. Each file contains several codes. यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग फाइल्स हैं, v1 से लेके v5 तक. हर एक फाइल के अंदर कुछ ना कुछ कोड भरा हुआ है. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, इफ वी नीड टू कॉल द सिंगल फाइल, अगर हमें कोई सिंगल फाइल ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और सिंगल फाइल का नाम डाल देंगे, जैसे v1.dart हो गया, v2.dart हो गया, इस तरह से हम नाम डाल देंगे. पर अगर मुझे ये सारी की सारी फाइल्स एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या, पैकेज. इसको हम क्या बोलेंगे, पैकेज बोलेंगे हम इसको. ये बात समझ में आ रही है, क्या बोलेंगे इसको, पैकेज बोलेंगे. और फिर हम कहेंगे कि पैकेज में क्या हमें कैलकुलेट करना है, इस पूरी की पूरी फाइल्स के अंदर ये जो v2 हमारे पास में है, इस v2 के अंदर कुछ कोड भरा हुआ है, उसको लेके आओ. बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? Is it clear? Saidi, is it clear that what we are doing? We just calling all the files into a single file, as all the files that comes into a group known as package. And into this package, when we call a single file, when we will go with that import, then package, then flutter, then so on. So what we are doing now, we are just calling the specified things. Let's suppose maybe I'm not providing the screen to you like this. Okay, so is it visible? Actually I draw these things. So into this we have different files, and into these different files the group which we made, it comes as package. It will find into the recording. When I share the recording, you will see the specified thing. So now what we are going to do, we are calling this flutter into it. So I use this package like this. Into this package I use this flutter. Into this flutter I use this material.dart like this. Any doubt? कोई doubt है बेटा इसमें? Sahiti, is any doubt? Any doubt related to this part? Suryansh? Okay, now we will go with this void main part. So why we are using this void main? हरिओम, void main बेटा हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बेटा void नहीं, मैं यहाँ पे void main की बात कर रहा हूँ, पूरे मेथड की बात कर रहा हूँ मैं इसके लिए. इस पूरे को क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? या बिकॉज इट्स एन एंट्री पॉइंट. ओके, ये एक एंट्री पॉइंट होता है, बिना इसके हम एप्लीकेशन को नहीं चला सकते हैं. ओके, जब भी रन करेगा तो रूट विजेट जिसको अटैच करेगा, या रूट विजेट मतलब जहाँ से कॉल करेगा वो वॉइड में नहीं होगा हमारे पास. इसके बाद मैंने क्या दिया, यहाँ पे रन ऐप दिया. रन ऐप क्या काम करता है सूर्यांश? रन ऐप पे काम करेगा. स्क्रीन को, विजेट को स्क्रीन से कनेक्ट करता है. ठीक है. Now the thing is that we are all starting the things from this part only. Okay, so instead of giving the run app like this, what I'm going to providing, first I am creating a class.
Okay, I am creating a class. Let's suppose I am creating a class with the help of with the name of our new sorry, our application. I am creating a class with the name of our application like this. Any doubt? So हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है आर एप्लीकेशन नाम से, और यही एप्लीकेशन, यही चीज मैं यहाँ पे पास कर दूंगा आर एप्लीकेशन नाम से, like this. Okay, but if you will see, we got some kind of error here. Okay, we got some error here into this our application part. So जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ एरर्स मिल रही हैं जब हम लोग इस आर एप्लीकेशन को पास कर रहे हैं. हमें एरर क्यों मिल रही है यहाँ पे? वाई वी आर गेटिंग दिस एरर? बिकॉज इस रन ऐप के अंदर, अब ये बात प्लीज नोट दिस पार्ट फॉर योर इंटरव्यू. ठीक है, इस बात को अपने इंटरव्यू के लिए याद रखना, क्योंकि इसको इंटरव्यूअर पूछता है क्वेश्चन को, बहुत बहुत स्पेसिफाइड क्वेश्चन पूछता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ओके, दिस इज अ लवली क्वेश्चन एक्चुअली. सो why exactly we are passing this R application, why we are getting this error? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. ठीक है, इसको मैं आपकी जो आपके पास में जो वो है आपका पीपीटी है उसके अंदर मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो इसको देख लो आप लोग एक बार. सबको दिखाई दे रहा है? Okay, now into this. So let's suppose if I am just getting the screenshot and I'm placing it here. So now if you will see this part, what exactly happening into this thing, into these things here. Okay, so हमें यही बात समझनी है या हमें यही बात पढ़नी है कि भाई इसमें आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रही है. ओके, सो प्लीज नोट दिस थिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली रन ऐप विल डू. रन ऐप के अंदर क्या होता है, रन ऐप क्या काम करता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट एग्जैक्टली रन ऐप विल डू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रन ऐप. रन ऐप का फंक्शन क्या है? सूर्यांश, रन ऐप का फंक्शन क्या है बेटा? नहीं, एप्लीकेशन को तो वॉइड में स्टार्ट करता है ना. तो ये रन, हाँ, रूट विजेट को कनेक्ट कराना, रूट विजेट को कनेक्ट कराना. या यू हैव टू कनेक्ट द यूआई, कनेक्ट द विजेट फ्रॉम द स्क्रीन. ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें रन ऐप के बारे में, तो रन ऐप हर बार किसके साथ डील करता है? विजेट के साथ में डील करता है रन ऐप. So if we go with this run app part, we will notice that run app will always work with a particular widget. Run app always work with widget. Yes, run app जो क्या काम करता है? run app हर बार widgets के साथ में काम करता है. Yes, पर हमने क्या डिजाइन किया है? What exactly we design? We only design a specified class. We don't creating this class. We don't consider this class as a widget, as this run app is not considering this class as a widget. That's why we get this kind of error. क्योंकि यहाँ पे देखो, ये रन ऐप बेसिकली इसको इस क्लास को विजेट की तरह कंसिडर नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये यहाँ पे एरर दे रहा है. ठीक है, इस बात को याद रखना. यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ. पार्ट क्या हमारे पास में, that run app will always work with widgets. The first thing is this. ठीक है, and why we are getting error? हम लोगों को एरर क्यों मिल रही है यहाँ पे? Because whatever the class we made or we created is not considered as a widget. That's why run app is not going to accept it.
ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास, रन ऐप हर बार विजिट्स के साथ में काम करता है, और हमने जो क्लास बनाई है अभी हमने उसको विजिट कंसिडर नहीं किया है, इस वजह से रन ऐप उसको एक्सेप्ट नहीं करता। एनी डाउट? ओके, सो we have this run app, we have this run app, and this run app will always work with these budgets. Okay, is it clear, Sayati? This is clear that run app will always work with widget. Okay, so is we are creating some kind of widgets, is we are created a widget or we are created a class? This one is a class. Okay, so because this is a class, that's and not a widget and not considered as a widget, so that's why run app says that specified that you are providing me the class and they are not widgets, but I am always working with the widgets. So that's why it is not accepting this class. Okay, any doubt? Yes, that's why it is not accepting, it is providing error some kind of. ओके, सो प्लीज नोटिस दिस पार्ट, आप लोग इस बात को याद रखना है, इस बात को कि ये आपके इंटरव्यू में आ सकता है, जब भी आप लोग फ्लटर डेवलपर का, जब भी आप लोग एक फ्रेशर का इंटरव्यू देंगे, वेन एवर यू विल फेस द इंटरव्यू ऑफ द फ्रेशर ऑफ फ्लटर ऐप, यू विल फेस द सेम क्वेश्चंस, आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताओ, ऐसी एरर आ रही है तो इस एरर में आपको क्या करना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है हमें हर बार वही चीज़ प्रोवाइड करानी है। Okay, whatever the function is able to receive, whatever the function wants, you have to provide the only same thing to it. Okay, you will never go beyond this, beyond that part. Any doubt? सूर्यांश, हरिओम, सहिति, किसी तरह कोई डाउट आप लोगों को, any doubt into this part? It's clear. So actually this is the first thing which is completely, which is comes as complete technically. आप ये कह सकते हैं कि एक पहली आपके पास ऐसा एक पार्ट आया जिसके अंदर टेक्निकलिटीज को हमें याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकली चलेंगी और कुछ चीज़ें हमारे पास आर्किटेक्चर बेस्ड चलेंगी। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड एज देयर ओन नीड्स। यहाँ पे हर एक चीज़ एक स्पेसिफाइड सिनेरियो, एक स्पेसिफाइड सिस्टम के हिसाब से डिक्लेयर करी गई है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, सो देखो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब से आज तो मैंने वो थोड़ा क्लास का समझाया है, कल से हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे सेम पॉइंट पे, सेम पेज पे। ओके, इस बार आपकी जो क्लास होगी वो सैटरडे संडे को भी लगेगी। ठीक है, मुझे ये बताना आप लोग 12 बजे 1 बजे आप लोग फ्री हो कि नहीं हो। ठीक है, सैटरडे संडे, सो डेट हम लोग उस टाइम पे अच्छा खासा एक क्लास का पोर्शन करना है। बता देना, बता देना, फ्राइडे तक मुझे क्लियर कर देना। सही थी, एज यू ऑल्सो ना। ओके, the second thing is from tomorrow we will work on application, we will learn that how we are creating applications using these classes, how we first of all हम ये सीखेंगे कि क्लासेस कैसे बना रहे हैं हम, विजेट्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद में हम एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट दैट हर एक विजेट को मेंशन कर पाना मुश्किल है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे करूँगा जिस विजिट की क्या जो प्रॉपर्टी होगी, हमें प्रॉपर्टी कैसे पहचानेंगे कि उस विजिट की क्या प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये पहचानना सिखा दूंगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ में काम करना पड़ेगा। ठीक है, सूर्यांश क्लियर? हरिओम। ओके, so now let's go with another part. Let's suppose we have we already done with these data structures and so on. So now that's how we are creating. Let's suppose what we are studying now, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, to add custom widgets we need to create a class with constructors into code. We will study about, we are now studying about some kind of custom widgets, that how we are creating our widgets, and with the help of classes and constructors हम लोग कैसे अपने हिसाब से widgets बनाएंगे with the help of class और constructors. So देखो, मैंने आपसे बहुत बार ये कहा था कि डार्ट के अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देना। ठीक है, वो क्यों मैंने आपसे कहा था, क्योंकि इसके अंदर वो सारे कंसेप्ट आएंगे।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिए थे सब कर लिए हैं डार्ट के अंदर? सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, यानी आपको सारे, मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डार्ट अच्छे से आ गई है। यस, अगर आप, दैट मीन्स अच्छे से आने का मतलब ये है, दैट मीन्स कि आपको डार्ट के कंसेप्ट मालूम है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली कॉल कर लेंगे कि क्या कंसेप्ट थे क्या नहीं। ओके ना? सो इनटू दिस कंसेप्ट, लेट्स सपोज, लेट्स go with the same part. So here, what we exactly started, we created a specified class. Let's suppose I provided like gradient container. Into our scenario, we provided with another name. Okay, so here I just created a class. यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाई है। जैसे हम एक क्लास बनाएंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट वी हैव टू नो दिस, दैट एक क्लास को विजिट में जब भी हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, whenever we need to convert a class into a widget, we have to inherit all the functionalities, all the features from other classes. जब भी हमें एक क्लास के अंदर, ध्यान रखना, जब भी हमें किसी क्लास को विजिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें हर बार दूसरी कुछ ऐसी बनी बनाई क्लासेस हैं जिनके अंदर से हमें कुछ फीचर्स वगैरह को इसके अंदर लेके आना होता है, ठीक है ना? अब लेके आने का मतलब क्या है? यहाँ पे वी डोंट हैव टू राइट ऑल दी थिंग्स इनटू दिस क्लास। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो, जैसे आप इंपोर्ट पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे इंपोर्ट फ्लटर dart.io या मटेरियल लैब, जो भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वाई यू आर इंपोर्टिंग दीज थिंग्स? क्वेश्चन है मेरा ये, ठीक है ना? आप लोगों से क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ जरा। वाई वी आर इंपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर into our file? Suryansh, why we are importing these things? क्या है लाइब्रेरी, क्यों इंपोर्ट कर रहे हो लाइब्रेरी? जरूरत क्या पड़ेगी? अब इसको भी देखो, इसको भी एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन तुम मान के चलना, ठीक है ना? सो एक्चुअली द थिंग इज, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली द पार्ट इज दैट वी डोंट हैव, इफ वी गोइंग टू राइट ऑल द कोड्स व्हिच इज नेसेसरी फॉर द फ्लटर, अगर हम हर एक सिंगल कोड को लिखने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो फ्लटर ने ऑलरेडी हमें कुछ चीज़ें बना के दी हुई हैं, हम बस उनको इंपोर्ट करके कॉल कर रहे हैं। वी जस्ट गोइंग टू इंपोर्ट इट एंड कॉल इट इनटू आवर फाइल। सो here the thing is that we don't have to write all the things here, we don't have to write all the instructions which will provide or which will convert the class into widget. हमें यहाँ पे हर एक वो कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है जो एक क्लास को कन्वर्ट करेगा विजिट के अंदर। वी जस्ट हैव टू इनहेरिट ऑल द फीचर्स, वी हैव टू इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अदर क्लासेस। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं। सो प्लीज, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आपके पास आता है, इनहेरिटेंस, डार्ट के अंदर। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इनहेरिटेंस इज? दैट मींस इफ यू आर गोइंग टू कॉल all the objects which are already declared into a particular class into your class, your own class, okay, that is known as inheritance. okay, inheritance क्या होती है? inherit क्या प्रॉपर्टी होती है? जब किसी एक क्लास में ऑलरेडी मेथड्स, प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं और जब हम उन प्रॉपर्टीज को अपनी खुद की क्लास में लेके आते हैं या अपनी क्लास में उसको कॉल करते हैं यूज करने के लिए, तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? साहित्य, इज इट क्लियर? सो यहाँ पे we are now discussing the feature inheritance. So if we have a particular class, let's suppose, is it visible? So अगर हमारे पास ये R एप्लीकेशन करके क्लास है, ठीक है, इफ वी हैव द क्लास द R एप्लीकेशन क्लास, then how we will inherit the property of other widgets? So what we have to do, there's a keyword
which helps us to inherit all the properties of other classes। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें दूसरी एक क्लास से अपनी क्लास के अंदर वैल्यूज को लेके आना है, प्रॉपर्टीज को लेके आना है, तो यहाँ पे एक कीवर्ड होता है जिसका नाम होता है एक्सटेंड। इधर एक्सटेंड, इज इट क्लियर? So to call all the features, to call all the properties from other classes, we have to use this extend feature, and after the extend, we have to use another class. We have to provide the name of the class, that is stateless widget. Stateless widget. So, are you guys are you guys notice this thing, that why we are using this line stateless widget? आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि स्टेटलेस विजेट हमें यहाँ पे क्यों देते हैं? क्या होता है इसके अंदर? क्लास दी, क्लास के बाद नाम दिया, उसके बाद एक्सटेंड लगाया। एक्सटेंड क्या करेगा? आपकी स्टेटलेस विजेट जो भी आपने यहाँ पे क्लास मेंशन करी है, वॉट एवर द क्लास नेम यू मेंशनड हियर, इस क्लास के अंदर से सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस पे चली जाएगी? इस आर एप्लीकेशन में चली जाएगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके इस स्टेटलेस विजेट से जो भी प्रॉपर्टीज स्टेटलेस विजेट के अंदर हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज को आर एप्लीकेशन में बुला रहे हैं, लेके आ रहे हैं। इज इट क्लियर? सही, इज इट क्लियर? सूर्यांश, सो आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ पे ये लाइन जो हम लिखते थे, इस लाइन का क्या मतलब था? इज इट क्लियर दिस लाइन? आर यू गेटिंग दिस लाइन? No, I'm not discussing about the stateless widget। मैं यहाँ पे stateless widget की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि मेरे पास जैसे ही मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ पे देखो एरर आ रही है। क्यों एरर आ रही है? क्योंकि ये एक क्लास की तरह एक्ट कर रहा है, ना कि एक विजेट की तरह। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्योंकि इसको एक विजेट बनाना है, तो मुझे इसे विजेट की तरह चीज़ें भी तो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ना, जो विजेट के अंदर चीज़ें होती है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक क्लास ली, क्लास का नाम था स्टेटलेस विजेट, जो कि इस material डॉट डार्ट के अंदर आती है। ठीक है, मैंने इस क्लास को बुलाया अपने पास में, और मैंने कहा कि भाई आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, वो प्रॉपर्टीज आप मुझे पकड़ा दो। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अब ये प्रॉपर्टी पकड़ाएगा कैसे तुम्हें? आपको यहाँ पे पास करना होगा एक्सटेंड्स इस तरह से, और फिर पास करना होगा उस क्लास का नाम जिस क्लास से आपको वैल्यूज उठानी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या है क्लास, वो स्टेटलेस विजेट। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? अब तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे हमने स्टेटलेस विजेट यहाँ पे पास किया है, ऊपर से हमारे पास ये एरर चली गई है। क्यों चली गई है? क्योंकि अब इसने इस क्लास को कन्वर्ट किस में कर रहा है? विजेट में कंसिडर कर रहा है। पर अब हमारे पास इधर एरर आना चालू हो गई है। एरर क्यों होना चालू हो गई? क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि भाई साहब हम क्लास बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और तुमने हमें यहाँ पे विजेट बना दिया है। तो एग्जैक्टली अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि क्या मैं एक क्लास हूँ या मैं एक विजेट हूँ। बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? सूर्यांश, हरिओम, क्लियर हो रही है बात ये जो मैंने बोला है अभी? अब ये सारी चीजें, दीज होल थिंग्स आर कम इनटू दिस आर्किटेक्चर। ये सारी चीजें फ्लटर के आर्किटेक्चर में आती है। यू हैव टू स्टडी दिस पार्ट, दैट ये चीजें अब कैसे होंगी, हमें अब ये समझना है। ठीक है, सो एनी डाउट इनटू दिस पार्ट दैट व्हाट एग्जैक्टली एक्सटेंड विल डू? Saiti, have you any doubt into this part, that what exactly extend will do? So extend inherits all the properties of stateless widget and will transfer it into whom? Our application. Okay, so because of this act, because we do the extends, what will happen? Our application, our class will convert into what? Convert into widget. But now what exactly confusion occurs here, that if this is a widget, then why we are providing the class name here? Okay, so now whatever we are coding here, whatever we are coding between into this class, we will code to justify that what exactly our application will do, what exactly features are available into this our application part, and what will happen, what will going to into our application system. तो यहाँ पे अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या समझने वाले हैं
अब हम ये जस्टिफाई करेंगे अपने एप्लीकेशन को कि भाई ये जो आर एप्लीकेशन की मैंने क्लास बनाई हुई है, ठीक है ये विजिट की तरह कंसिडर है, बट नहीं, बट हम लोग इसको पहले क्लास बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये विजिट है। ठीक है, तो हम लोगों को इसको अब जो भी हम लाइन ऑफ कोड जहाँ पे मेंशन करेंगे वो सब लाइन ऑफ कोड इसी चीज को जस्टिफाई करते रहेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर समझ में आया कि आर्किटेक्चर हम कैसे पास कर रहे हैं इसके अंदर। सो अब जो भी आपके आगे की क्लासेस होंगी, ये आगे की क्लासेस आप लोग अभी तक प्रोग्रामिंग की क्लासेस पढ़ रहे थे आप लोग कि प्रोग्रामिंग में हम ये क्यों डालते हैं, ऐसा क्यों डालते हैं, हम ये डिज़ाइन करेंगे तो ऐसा करेंगे, हम क्या बोलते हैं इसको, हम यूआई डिज़ाइन करेंगे तो ऐसा करेंगे, हमने अब तक ये सीखा है बस खाली। पर नाउ अब हम क्या सीखेंगे यहाँ पे कि आर्किटेक्चर स्पेसिफिक कैसे डिजाइन किया जाएगा, तो आगे आने वाली आपकी सारी क्लासेस आर्किटेक्चर पे रहेंगी। ठीक है, सो कल से आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर कॉपी, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है कल से आपको, साथ में अपना लैपटॉप। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा वो सारे कंसेप्ट आपको नोट भी करने सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलो इस रिकॉर्डिंग को मैं आपको भेज रहा हूँ। आज आपको क्या करना है, आप लोगों को बस इस कोड की प्रैक्टिस करनी है कि इस कोड में क्या होता है। ठीक है, मैं आपको ये आपकी जो ये जो पीपीटी है, पीपीटी भी भेज दे रहा हूँ, थोड़ा और इससे पीपीटी से पढ़ना, थोड़ा समझना इस पीपीटी के बारे में, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड उसके बाद में थोड़ा मतलब थोड़ा अपने को प्रिपेयर करना कि हाँ कल से हम आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर इज जस्ट लाइक डीएसए। डीएसए जानते हो आप लोग, डीएसए पढ़ा है अब तक? हाँ, पढ़ा अब तक नहीं पढ़ा? अब तक नहीं आया डीएसए, सही थी, हैव यू नो अबाउट डीएसए? ओके, सो प्लीज, ठीक है, सो नाउ so let's over this meeting and we will meet tomorrow, okay, at the same time.